we discuss about the equation of motion for the uniformly accelerated motion. Okay, what do you mean equation of motion? Equation of motion is a set of the three equations which give the relationship between the initial velocity of the object, final velocity of the object, distance covered by the object, acceleration of the object, and time taken by the object. Okay, equation of motion is a set of three equations which give the relation between the initial velocity, final velocity, distance, acceleration, and time. Okay, now first equation of motion. First equation of motion is v is equal to u plus a t. Okay, where v is the final velocity, u is the initial velocity, a is the acceleration, and t is the time. This is the first equation of motion. This is the first equation of motion. Okay, and it is also known as velocity time equation. Velocity time equation भी हम लोग इसको बोल सकते हैं बेटा. ठीक है, ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज s is equal to ut plus half a t square. S is equal to ut plus half a t square, where s is the distance covered by the object, u is the initial velocity, t is the time, and a is the acceleration, and t is again time. Okay, this is the second equation of motion. This is the second equation of motion, and also known as position time equation. Okay, second equation of motion is also known as position time equation. Similarly, third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as. Okay, where v is final velocity, initial velocity, acceleration, and distance. This is the third equation of motion. This is the third equation of motion, and also known as velocity position equation. This is also known as velocity position equation. Okay, now we derive the equation of motion for the uniformly accelerated motion with the help of the graphical method. ग्राफिकल मेथड मीन्स हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है. तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो भी हम लोगों ने अभी इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिस्कस किया हुआ बेटा, वो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर ड्राइव करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u. We have to consider an object moving with initial velocity u, and this object is moved in the uniformly accelerated motion for t time. Okay, and after time t its velocity will change and it will be v. Okay, हम लोगों ने क्या किया हुआ, एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है जो इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मूव कर रहा है. ओके, और जो मोशन है हमारे पास वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है, जो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो इक्वल अमाउंट में हो रहा है. ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये टाइम हम लोगों ने यहाँ पर t सेकेंड माना हुआ है. ओके, तो आफ्टर टाइम t स्पेंड होने के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो u से डिफरेंट हो जाएगी. इट विल चेंज एंड इट विल बी v. हम लोगों ने आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज v. हम लोगों ने इसको v माना हुआ है बेटा. तो अब हम लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ पर देन वी ड्राइव द vt ग्राफ. vt ग्राफ मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर सच टाइप ऑफ द मोशन. ओके, फॉर दिस वी हैव टू कंसिडर टाइम अलोंग द x एक्सिस. टाइम को हम लोग हमेशा x एक्सिस के अलोंग कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर y एक्सिस के अलोंग हमारे पास आ जाता है बेटा वेलोसिटी. ओके, now we draw the velocity time graph for uniformly accelerated motion which is a straight line passing from the origin. Okay, we draw the velocity time graph for uniformly accelerated motion which is passing from the origin and become a straight line. Okay, when it is passed from the origin, then the initial velocity of object is 0. Okay, but in that case velocity of object is not equal to 0, it will be u.
Okay, so we plot the velocity time graph for such a type of the motion. This is the velocity time graph for the uniformly accelerated motion. Okay, this is the point O A which represent the initial velocity. Object have the initial velocity u and it will move in the uniformly accelerated motion, so the graph will become a straight line. Okay, we get this type of the graph. Now there are some particulars from this velocity time graph. Okay, we let the initial velocity u, final velocity is v. Okay, from this graph we know that OA is also equal to CD. OA की जो वैल्यू है या AO की जो वैल्यू है हमारे पास वो CD के बराबर आ जाएगी, और इसको हम लोगों ने क्या माना हुआ बेटा यहाँ पर U के बराबर. ये पूरी साइड जो हमारे पास है वो U के इक्वल आ रही है यहाँ से भी और इस वाली साइड से भी. ओके, सिमिलरली BD यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाली जो लाइन है हमारे पास यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और इसको हम लोगों ने कितना मानना हुआ है V. ये वाली लाइन की जो लेंथ है वो इस BD के बराबर आ रही है हमारे पास, तो BD हमारा कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर V. और OD हमारा कितना आ रहा है यहाँ पर टाइम के बराबर आ रहा है, T हम लोगों ने यहाँ पे माना हुआ है. ठीक है, अब हम लोगों ने ग्राफ से यहाँ से निकाला हुआ है BC. ये BC निकालना है मेरे को. ठीक है, मुझको BD पता है, टोटल डिस्टेंस पता है, और ये CD पता है, मुझको BD निकालना है. तो BD से हम लोग क्या कर सकते हैं, BC इज इक्वल टू BD माइनस CD हम लोगों ने माना हो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास BC इज इक्वल टू V माइनस U. नाउ वी ड्राइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके, एज वी नो दैट acceleration is equal to change in velocity divided by time. Okay, acceleration is represented by A and change in velocity from graph is represented by BC and time is equal to OD यहाँ पर आ रहा है बेटा. ठीक है, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर BD माइनस CD ओवर OD. ओके, तो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए क्या रिजल्ट आ जाता है, A इज इक्वल टू V माइनस U प्लस D. ओके, फर्दर अगर हम लोग इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है AT इज इक्वल टू V माइनस U and solve this equation for V. We get V is equal to U plus AT. This is the first equation of motion. Now second equation of motion. Okay, as we know that distance is equal to area of VT graph. ठीक है, ये चीज़ बेटा हम लोगों को पता है कि जो डिस्टेंस हमारे पास ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, दैट डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ द VT ग्राफ. ओके, हेयर आवर VT ग्राफ इज अ ट्राइपीजियम. हम लोग जो ये VT ग्राफ बना हुआ है इसका एरिया निकालना है बेटा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कंसेप्ट लगा सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइपीजियम के लिए. ठीक है, ट्राइपीजियम में हमारे पास आ जाएगा दिस इज द वन साइड एंड दिस इज द सेकेंड साइड BD. बोथ आर द पैरेलल साइड. AO and BD are the parallel side and OD is the distance between them. तो हम लोग यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइपीजियम का फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं बेटा. ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइपीजियम. एरिया ऑफ ट्राइपीजियम हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो जिसके लिए हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा 1/2 sum of the parallel side means AO plus BD into the distance between them which is equal to OD. ये वाला हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा. और जो भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन आ रही हैं ग्राफ से हम लोग चेक कर लेते हैं. OA जो हमारा है बेटा, OA हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, OA इज इक्वल टू U एंड BC हम लोगों को BD निकालना है. यहाँ पर BD हमारा जो है वो V के इक्वल आया हुआ है. दिस इज द BD हम लोग यहाँ पर लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज आ जाएंगी वो सारी हम लोगों को लिख लेनी है. तो इसमें किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा AO इज इक्वल टू U एंड BD
पी डी इज इक्वल टू वी एंड ओ डी इज इक्वल टू टी। ये वैल्यूज मैंने यहाँ पर पुट कर ली हैं बेटा। ओके, अब ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। बट दिस इज नॉट द सेकंड इक्वेशन। ओके, हम लोग यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये वाला रिजल्ट होता है हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं बेटा, तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस v के लिए हम लोग रिजल्ट पुट कर लेते हैं u प्लस ए टी इंटू टी। ये रिजल्ट यहाँ पर बन जाता है बेटा हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम लोग यहाँ पर फर्दर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जो ये इक्वेशन आई हुई है इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर लेते हैं बेटा फर्दर नेक्स्ट वाले पार्ट में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 2u प्लस ए टी इंटू टी। ओके, अब यहाँ से इस साइड से हम लोग 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड से हमारा टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाती है बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2u और इस साइड से हमारे पास आ जाएगा t। ओके, सेम नेक्स्ट 1/2 a t इंटू टी। ये रिजल्ट बन जाता है हमारा। यहाँ से 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो ये s हमारे पास आ जाता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए और ये यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं बेटा। नाउ वी ड्राइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, थर्ड ऑफ मोशन को स्टार्ट करने के लिए बेटा हम लोग क्या कर लेते हैं, ये वाला इक्वेशन हम लोगों ने निकाला हुआ है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम लोग यहीं से स्टार्ट कर देते हैं इसको, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी इंटू टी। ओके, ये इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फिर हमको पता है बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, अगेन वी यूज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से आपको क्या करना है, t के लिए वैल्यू निकाल लेनी है। तो t के लिए अगर मैं वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा बेटा, इस होल व्यू को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आया, तो यहाँ पर टाइम के लिए जो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू v माइनस यू ओवर ए। ये वाला रिजल्ट बनता है यहाँ पर। अब ये वाली जो वैल्यू आई हुई है हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2 u प्लस वी इंटू वी माइनस यू ओवर ए, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट बन चुका है बेटा। तो हम लोग अब क्या इसको फर्दर इक्वेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए हमारे पास आ जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 a कंबाइन कर लिया मैंने, और यहाँ पर ये हमारे पास बन रहा है u प्लस वी इंटू वी माइनस यू। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, ये वाला रिजल्ट बन जाएगा। ओके, अब यहाँ से जो हमारे पास ये 2a आया हुआ है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर और वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है बेटा। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशंस को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, इट इज़ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग किसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन आ रहा है सबसे पहले। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सर्कुलर वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्कुलर का मतलब यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, then the motion of object is called the uniform circular motion। ओके, ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए डेफिनेशन आ जाती है बेटा। फिर हम लोग एग्जांपल्स
की बात करते हैं कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल कहाँ पर है हमारे पास। ओके, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं हमारे पास, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, दे आर मूव इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, वो इक्वल टाइम के बाद अपनी पोजीशन को दोबारा से रिपीट करती हैं। ओके, एंड सेकंड एग्जांपल इज द मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ये एग्जांपल हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। द मोशन ऑफ अर्थ इज द यूनिफॉर्म। ओके।